focused at her gynec practice at her own Shri Hospital since last 20 years. She is also passionate Garbha Sanskar consultant. She is an Art of Living faculty and has served as life coach to many people from diverse age groups and especially youngsters. Inspired from her guru, Sri Ravi Shankar ji, her mission is to create a stress-free and a happy life, happy society through various courses from the art of living. We have one more well-known resource person with us, Dr. Rajesh Dhopeshwarkar sir. He is a qualified cardiologist and EP specialist with 15 years of experience. He has completed his doctorate of medicine in cardiology from AIIMS, New Delhi, and holds clinical fellowships at Toronto General Hospital, Canada. He is currently practicing as a consultant interventional cardiologist and electrophysiologist at a top Pune-based hospital and runs a heart rhythm and heart failure clinic. He delivers lectures in local as well as national cardiology meetings and imparts training to other cardiologists in complex cardiac interventions. He is rated as top 3 cardiologist of Pune by 3bestrated.com, which is an independent, unbiased rating agency. He is associated with Art of Living since 13 years. He is a faculty and a certified corporate trainer with the organization and conducts AOL courses in Pune. He is delivered talks on health and lifestyle disorders and managing stress in many industries around Pune. He strongly believes in using breathing techniques to stay healthy and happy. So we are having two guides today with us to guide us on stress management. I'm very happy to have both of you as a resource person today. So without wasting much time, I request our resource persons to take over the session. Thank you. Thank you so much, Rajnigandha madam. And it is a real pleasure to be here with all of you, all the faculty of A.G. Patil Technical Institute and Engineering College. And with me, we have Dr. Renuka madam. She has been a very senior colleague in Art of Living, and we've been working together for the past 1 year in this COVID pandemic. And it is really a pleasure to be with all of you. Renuka madam, आप भी अनम्यूट करके अगर बात करते हैं. Yes, welcome and thank you for giving us opportunity to interact with you. और राजेश सर से बहुत इंटरेस्टिंग कुछ जानेंगे हम इस दौरान, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. ओके, तो अभी सब लोग कैसे है? रिलैक्स्ड है? खाना वगैरह सबका हो गया है? हाँ, we would like to see your faces also, beautiful faces also. So अगर there is no restriction तो आप आपके वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं. हम आपके नाम देख ही रहे हैं, तो उसके साथ आपके चेहरे भी देखेंगे तो इंटरेक्ट कर पाएंगे. तो we all are professionals. As professionals, we understand what difficulties each one of us goes through in our own lives. And this pandemic, अच्छा इंग्लिश चलेगा सबको या हिंदी चाहिए? जैसे भी आप बोलना, कंफर्टेबल कौन से, समझता तो सबको है, लेकिन आप कंफर्टेबल कौन से लैंग्वेज में है आप चैट बॉक्स में डाल देना. I have not used Google Meet so much. मुझे पता नहीं इसमें कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. हिंदी इंग्लिश करेंगे, इज दैट ओके? We'll keep mixing between Hindi and English. Absolutely okay. Oh, yes, sir. Very nice. Yeah. So, look, our lives, you know, all are as professionals, our life is a mixed bag, isn't it? We have some good moments, we have some not so good moments in our life, and this pandemic has definitely put us a lot of challenges. हमारे life में कई सारी challenges इस pandemic ने डाले हैं. And we were almost feeling that we have gotten over it when the worst is actually come right in front of us. And this time, इस बार
ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ है एंड it has been really terrible. We have lost some very close people to us, and it is really heart-wrenching to see uh, losing people like this. Very, very challenging time for everybody. But these are the times where we need to keep our spirits high. What do you say? Not only our own spirits high, we have to bring up those spirits of those people who have lost their near and dear ones. तो अपने लिए और औरों के लिए भी, आजू बाजू के लोगों के लिए भी हमें अपना खुद का उत्साह बनाए रखना है और बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ाना है, जिनको भी घर में कुछ ना कुछ है ना। ऐसे इस बार मैंने देखा है कई सारे हमारे ही दोस्त और फैमिली मेंबर्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है हुए हैं कोविड की वजह से। सो जस्ट नो दैट दिस पैंडेमिक विल आल्सो गो अवे, ये ऐसे रहने वाला नहीं है। ऑल्सो नो दैट our planet, this entire human race is way too big than this pandemic. हाँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है कि ये सब ह्यूमन रेस को खत्म करके जाने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस विल गो अगेन। आई एम श्योर देयर विल बी मेजर्स, मोर मेजर्स विल कम, वैक्सीन्स विल कम, और हम सब लोग तक पहुंचेगी वो जल्द से जल्द, सो दैट और ज्यादा इससे क्षति ना पहुंचे, सो दैट वी आर नॉट, more damage is not done to us. So while we are facing this, what can we do is one question that we should ask, rather than we have lost everything, we can't do anything. Rather than thinking like this, what can I do? What can I do to help myself? What can I do to help people around us? That is one question that will take us away from these gloomy times, from these difficult times. What do you say? Yes? You can just keep chatting in between. Yes, perfect. So I'll tell you my own experience. I've been with Art of Living for the past 13 years or so, and it was just an accidental thing that I encountered this particular breathing technique. I spoke to somebody, and I was already a cardiologist at that time. I had some time at that moment when I had some free time, so I went in and did this program. I really liked this program. After doing that program, I went through some really stressful period while I was in Canada, and there I did some other programs of the Art of Living, advanced programs of Art of Living, and they really helped me bring myself very, very strong through difficult times. And what were these programs all about? These programs were all about breathing. Isn't it surprising? Just breathing properly can help our mind settle down. देखो अक्सर क्या होता है कि हमें लगता है कि माइंड डिस्टर्ब हो गया, एजिटेटेड हो गया, इट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. सो व्हाट इज इट दैट ब्रिंग दिस अप? जो स्ट्रेस है, व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेस, व्हाट इज इट दैट हैपेंस इन आवर माइंड? डू यू हैव एनी आंसर्स फॉर दैट? यू कैन पुट इन चैट बॉक्स. just for a moment think about our own mind when it is really disturbed. कुछ क्षण के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा मन बहुत ही डिस्टर्ब है, और उस मन की स्थिति को आप अगर डिस्क्राइब कर सकते तो आप चैट बॉक्स में लिखना कि क्या होता है मन को. I'll wait for your answers. Then we'll find out what solutions we can offer. So let us think for a moment. हाँ, एक क्षण हम सोचते हैं कि क्या हुआ था जब जिंदगी में कुछ परेशान हुए थे. When we were really disturbed, when we were really angry. Some people say illness has brought in, feeling restless, feeling very restless. और क्या था मन का? मन की स्थिति कैसे थी? Just think. This is a very informal session. ऐसे कोई मैं कुछ बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ जिससे आप एकदम मस्त you will be relieved permanently of all the pains. ऐसे कुछ नहीं है. We are just here to share, chit chat, understand each other's lives, है ना? तो आप मुझे आपकी लाइफ में कौन से सिचुएशंस थे जिसमें आपको रियली परेशान आई? क्या चीजें जो थी वो परेशान किया आपने, और उसमें मन कैसे था? मन डिस्ट्रैक्टेड था, मन डिस्टर्ब था?
परफेक्ट, वी वांट अ कपल ऑफ मोर आंसर्स, और एक दो आंसर्स अगर हम मिलेंगे तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। यू जस्ट वांट टू इंस्पेक्ट अवर ओन माइंड, अपने खुद के मन को थोड़ा इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे वी एक्सपेक्ट, देन द माइंड इज गेटिंग स्ट्रेस्ड। यस, परफेक्ट। And when it gets stressed, it is distracted, it is disturbed, it is not able to focus. And in such situations, feeling lonely, negative thoughts come to the mind, and we are not able to handle the situation, right? ऐसे सिचुएशन में अक्सर ऐसे होता है कि मन खुद परेशान है और हम खुद को भी हैंडल नहीं कर पाते, और कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। ये करते करते सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। एंड आई टेल यू कि हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि ये जो मन है, जब मन रियली नेगेटिविटी की ओर खींचा जाता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसको संभाला जाए, संवारा जाए, ये हमें किसी ने अभी तक आज तक नहीं सीखा है। एंड द सीक्रेट रियली लाइज इन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वेरी थॉरली, अंडरस्टैंडिंग दिस डायनामिक्स ऑफ व्हाट हैप्पीनेस इज, व्हाट सैडनेस इज। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? How many of you really want to know what is this thing that governs our mind? Okay, very nice. So look, if you inspect yourself, अपने खुद को ही देखो। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो कैसे रहते हैं? We are fresh, nice, fine, है ना? अच्छा नींद हो गया तो सुबह एकदम फ्रेश रहते, we are ready to go for work। फिर दिन भर के भागदौड़ में कुछ ना कुछ उल्टा पलट होते रहता है, एंड बाय इवनिंग वी आर टायर्ड, वी आर इरिटेटेड। कुछ आते घर के लोग कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं बात करना है, ये क्या चल करके रखा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू आवर माइंड। एंड व्हाई डज दैट हैपन? डू यू नो? रात भर हम सोते हैं तो जैसे हमने मोबाइल चार्जिंग को लगाया है वैसे हमारे सिस्टम को भी हम चार्ज करते हैं। डू यू ऑल एग्री? यस। और दिन भर में वो बैटरी जैसे अपना मोबाइल का डिस्चार्ज होता है वैसे ही अपना बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, तो मन का भी कुछ अपने मोबाइल या सेलफोन के तरह ही है। हाँ, क्या होता है कि जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं उतना उसका एनर्जी डाउन होता है। और ये जो एनर्जी डायनेमिक्स है, जो हैंडल कर सकता है अपने एनर्जी डायनेमिक्स, वो अपने आप को संवार सकता है, अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो ये जो एनर्जी है, अपने अंदर की एनर्जी है, अपने अंदर की जो शक्ति है, वो किन चीजों से बढ़ती है? आई वुड वांट टू आस्क यू, आप बताइए कि कौन सी चीजें आप करते हैं कि जिससे आपको फ्रेश लगता है। टेल मी ऑफ सम थिंग्स व्हिच मेक्स यू फील कि हाँ दिस इज समथिंग व्हिच आई डू इफ आई एम डाउन। कुछ भी कह सकते हैं, चाय पीते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, व्हाटएवर यू डू, यू टेल मी। Again, I'll wait for your answers. Yeah, something that we like, yes. But you can tell what you like. Listening music, a lot of people. Eating sweets, yes. This is very important. Building hobbies, yeah, that is a long-term plan. देखो, ये बहुत सिंसियर ग्रुप है, सब लोग बिल्कुल बराबर आंसर दे रहे हैं। Eating sweets, a lot of us do that. If we are irritated, तुरंत जाके कुछ खाना खा लेते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं, है ना। शुगर इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है प्राणायाम बहुत कम लोग करते हैं प्राणायाम। शुगर इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हम खाते हैं ना, तुरंत ब्रेन से एक डोपामिन रिलीज होता है विच मेक्स अस फील गुड। शुगर लेवल बढ़ता है, बिल्कुल एकदम अच्छा मस्त लगता है, बट दैट इज नॉट द मोस्ट हेल्दी वे ऑफ डूइंग इट। यू नो, सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी ड्रिंक टी। जो भी एडिक्टिंग सब्सटेंसेस है ना, वो ब्रेन में एक हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वी फील वेरी गुड, है ना। या फिर कोई सिगरेट पीता है या थोड़ा सा दारू पी लेता है, तो दे आर नॉट द मोस्ट हेल्दी वेज ऑफ बिकमिंग हैप्पी। अपने मन को उभारने के लिए बहुत हेल्दी वे नहीं है, बिकॉज दे विल बी एडिक्टिंग एंड दे विल ब्रिंग अस डाउन, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि चाय कॉफी पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मन फिर से डाउन जाने लगता है ना। यस। Then we want one more cup, one more cup, one more cup. Same thing happens with a lot of things. तो हालांकि वो है, आपको
टेम्पररीली डेफिनेटली देगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा ये करना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, चाय पी ली थोड़ी, दैट इज गुड, उसको एक उसकी एक जगह है, लेकिन उसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना। सो व्हाट आर द अदर सोर्सेज? स्लीप तो आपने पहले ही बोल दिया कि हाँ, नींद से तो बहुत फ्रेश होता है, लेकिन जब बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना तो नींद भी नहीं आती है, इतने परेशान होते हैं तो रात में सोने के लिए जाते हैं, दिन में कुछ ऐसे अगर मेजर डिस्टर्बेंस है, माइनर है तो ठीक है, लेकिन मेजर डिस्टर्बेंस है, इफ आवर माइंड इज डिस्टर्ब, देन नथिंग, इवन स्लीप खराब हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट अफेक्ट्स अवर हेल्थ। मैं कहता हूं अगर अपने हेल्थ को अच्छा रखना है ना, तो अगर नींद अच्छी है तो बाकी सब ठीक रहता है। अभी कोविड के इसमें भी आपको पता है, people are dying not because of the virus, they are dying because of the fear। मुझे कोविड हो गया है इस डर से ही वो हॉस्पिटल में जाके इतने परेशान होते हैं कि अपना नर्वस सिस्टम जो है वो अपने बॉडी में इतने नेगेटिव सिग्नल्स भेज देता है, नेगेटिव सारा अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे हार्मोन सारे रिलीज होते हैं, वो पता नहीं, हमने थोड़े बहुत कुछ जांच किए हुए हार्मोन्स जैसे है, वो है थायराइड है, कुछ कॉर्टिसोल लेवल्स है, ये सारे लेवल्स है पता है, उससे भी अननोन कई सारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्रीज में तैयार हो रहे हैं, है ना। तो उसमें से जो अच्छे हैं वो हमें ऊपर उठाते हैं और खराब है वो सब नीचे ये करते हैं। आपको पता है नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारे इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं। If there is something that can destroy our immunity, it is just negative emotions। आप खुद देखो, जब हम खुश रहते हैं तो बीमार है तो बीमारी ऐसे निकल जाती है, यू नो, डज दैट हैपन? बीमारी भी नहीं छूती है जब खुश रहते हैं तो। अब इफ यू आर रियली हैप्पी, इवन इलनेस डज नॉट टच अस, यू नो व्हाई? बिकॉज दिस हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, हमारे अंदर जो एनर्जी चैनल्स है, ऐसे कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है। आयुर्वेदा में कहते हैं कि 72,000 नाड़ियां होती है, और वो 72,000 नाड़ियों में से अपना सर्कुलेशन जो है वो चलते रहता है, एंड दीज नेगेटिव इमोशंस टेंड्स टू क्लोज ऑफ दिस नाडीज। और अगर वो नाड़ी और एनर्जी चैनल्स क्लोज ऑफ हो जाते हैं तो दैट इज हाउ our immunity starts getting affected। So maintaining a very good positive state of mind is also important, और उसी के लिए सब कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेजर अगर डिफिकल्टी आती है तो सब लगता है सब कोलैप्स हो गया है, इट इज जस्ट नॉट होल्डिंग अप, वी ट्राई टू डू इट बट इट जस्ट डज नॉट होल्ड अप, एंड दैट इज वेयर ब्रीदिंग कम्स इन प्लेस। वही जगह है कि जहां पे हम थोड़ा सा अगर सांसों पे अपना ध्यान देने लगते हैं तो अंदर से एक चेंज आने लगता है। आप में से अभी कितने लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ ताकत है रियली? आई एम जस्ट आस्किंग यू, अभी आपको लगता है कि ब्रीदिंग हैज दैट पावर टू हील? कितने को लगता है? नहीं है तो नहीं बोल सकते, जस्ट ब्रीदिंग हैज द पावर टू हील। जावेद जी कह रहे यस, श्रीपाद जी कह रहे यस, और अगर है तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं कि क्यों लगता है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया है या किस बेसिस पे आपको लगता है कि हाउ डज इट अफेक्ट अवर सिस्टम। हाँ, इतरकर जी कह रहे हैं कि डेफिनेटली, नितिन मावले जी कह रहे यस, पद्मा जी कह रहे यस। तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं कि व्हाई डू यू फील एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद ब्रीदिंग। कुछ अनम्यूट करके बात करना है तो कर सकते हैं, और अगर टाइप करना है तो कह सकते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन से ब्रीदिंग की, जो प्राणायाम आपने बोला, पद्मा जी ने बोला था प्राणायाम का बहुत महत्व है, तो आप बोल सकते हैं कि आपने कौन सा एक्सपीरियंस किया है, तो हम आज कुछ करेंगे, करेंगे ना? यस। डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेस द माइंड, परफेक्ट परफेक्ट। आपको पता है मेरे पास ना कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बस दिल में बहुत डर लगता है या धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ आजकल, वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ना, वो पल्स ऑक्सीमीटर उनकी उंगली में लगाता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ आप ये आंखें बंद करो। तो आंखें बंद, सिर्फ आंखें बंद करने से मन इधर उधर जाना बंद हो जाता है। पद्मा जी इज रियली एक्सपीरियंस्ड इट, प्राणायाम से बहुत फायदा हुआ है।
तो बंद हो जाता है। फिर मैं उनको सिर्फ बोलता हूँ कि चलो लंबी सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। ऐसे मैं 1 मिनट करता हूँ। 1 मिनट में पल्स रेट मैंने देखा है लगभग 20 से कम हो जाता है। कैन यू बिलीव इट? लोग ऐसे आते हैं, पल्स रेट 100, 110 ऐसे पल्स रेट से आ जाते हैं, और 15 से 20 से कम हो जाता है सिर्फ आंख बंद करने से और लंबी सांस अंदर, गहरी सांस अंदर और बाहर लेने से। तो हमारी मन जो है, हमारे मन को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम करने के लिए चलो रिलैक्स करो, रिलैक्स करो ऐसे करें तो ज्यादा टेंस हो जाते हैं, है ना। कोई आपको बोलता है हाँ बस राजेश तुम रिलैक्स रहो, कुछ मत करो, बस रिलैक्स हो, रिलैक्स हो, ऐसे अगर कोई कहने लगेगा तो और ज्यादा टेंशन बढ़ने लगती है, टेंशन बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम सांसों पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो मन अपने आप रिलैक्स करने लगता है। तो मन को मन के तौर पे या सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके उसको नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर कुछ देर सांसों पे ध्यान दे तो क्या होता है, मन इधर उधर दौड़ना बंद कर देता है ना। मन का टेंडेंसी क्या होता है, अक्सर कुछ चीज सामने है उसको पकड़ लेता है ना। कुछ भी चीज है, अगर कुछ चीज सामने नहीं है तो फिर क्या, पीछे जाके कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उसको लेके पकड़ लेता है। शांत बैठता है क्या मन? नहीं ना। या फिर व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, फिर उसमें कुछ डालना है, फिर थोड़ी देर बाद मन कहता है कि चलो किसी ने कुछ रिप्लाई दिया है क्या देखना है, कितने लाइक्स मिले हैं क्या देखने हैं, ऐसे होता है ना। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस टेंडेंसी ऑफ माइंड? ये मेरा और आपका नहीं है, मन तो सबका सेम है ना। तो मन क्या है, हमेशा इसी दौड़ में लगा हुआ है, क्या कि ये करना है, वो करना है। हाँ, फिर कभी इरिटेट हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, किसी ने लाइक दिया तो एकदम फूल गया, किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट डाल दिया तो ऐसे मुरझा गया। तो ऐसे लाइफ कैसे चल सकती है, आप ही बताओ। ऐसे मन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी लाइफ ऐसे ही दरिया में कहीं पे डूबने वाली है, अच्छी तरह से आगे जाने का चांस ही नहीं है ना। So this is what happens because our mind has this tendency of just taking up anything. हाँ, वो इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, and that is what is tiring. अक्सर हमें लगता है अरे आज बहुत काम किया है इसलिए थक गए, है ना, लगता है ना बहुत काम किया आज ऐसे थक गए। भाई काम तो फिजिकली करते ही नहीं है, बैठे बैठे हैं कंप्यूटर के सामने बैठते हैं या कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं, सब मेंटल काम ही है। तो अक्सर जो हमें थकाता है वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ऐसे कहते हैं कि 8-10 घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं थकाएगा उतना 1 घंटे का सिर्फ सोचना, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, इससे भी हम थक जाते हैं और ऐसे मुरझा जाते हैं। तो उससे निकलने के लिए क्या करना है, जैसे हम हमारे सेलफोन को यूज तो करते हैं, करना नहीं है ऐसे नहीं है, सेलफोन को यूज करने के लिए दिया है, वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारा जो मन है, उसको फ्रेश और ताजा रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हमारा जो ब्रेन है उसको एकदम शार्प रखने के लिए, क्लियर माइंड रखने के लिए, कि किसी ने कुछ पूछा है तो उसका सही जवाब तुरंत आ जाए। ऐसे सेलफोन में बहुत सारे ऐप्स चालू हो गए और सेलफोन एकदम क्रैश हो गया, रीस्टार्ट करने पड़े, वैसे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट न करना पड़े। इसके लिए हमें खुद के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है टाइम इन्वेस्ट करने के लिए? एवरी डे 30 मिनट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? हर दिन 30 मिनट सिर्फ करना है, और फिर देखना आपका सिस्टम जो है वो पूरा लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ एकदम झक्कास हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। तो अब हम क्या करते हैं, what we'll do is we'll do a little bit of breathing. आप यहाँ पे है तो हम थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्राणायाम किया है तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार सारी हमारी पुरानी जो भी ख्याल है कि ये प्राणायाम है, ये वो सब निकाल देंगे, ठीक है। मन में हमें कुछ करना है, ये करना है, वो सीखना है, आज आके ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिखाने वाले हैं, फिर वो कल जाके मुझे वो लेक्चर देना है, फिर अरे वो भी करना है, वो सब बाजू में रखेंगे, करेंगे सब। अगले 10-15 मिनट के लिए हम ये सारी जो चीजें हैं कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ जानना है, ये सब बाजू में रखेंगे, चलेगा? इज एवरीवन रेडी फॉर दैट? किसी को अगर कुछ जाके आना है, वॉशरूम जाके आना है, फटाफट वॉशरूम जाके आ जाओ। और कुछ करना है, हिलना है, डुलना है, चलो खड़ा हो जाए, सब जहां पे खड़े हो जाए, लेट अस स्टैंड अप।
नहीं तो मन क्या करता है, फिर तुरंत कहता है अभी खड़ा होने का मन कर रहा है, चलो खड़े हो जाइए सब, हाथ को झटकिए, झटकिए, अच्छी तरह से स्माइल करना, भले कैमरा के पीछे है, अपने लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। चलो झटकना झटकना झटकना, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अभी थोड़ा सा सिर को हिलाते हैं, सिर को पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ। जैसे सांस लेते हैं, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, और सांस छोड़ते वक्त धीरे से अपने चिन को अपनी छाती से लगाए, सांस को पूरी तरह से बाहर करे। अभी सांस लेते वक्त गर्दन को दाईं ओर से घुमाते हैं। लेट्स डू अ क्लॉकवाइज नेक ट्विस्ट रोटेशन द राइट साइड, और सांस छोड़ते वक्त आगे से नीचे आएंगे। वेरी नाइस। धीरे धीरे एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस एंजॉय व्हाट वी, अभी कुछ देर के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस जो है उसी में हम मस्त हैं। 3 बार दाहिनी ओर से करेंगे, और आगे आने के बाद रिवर्स करेंगे, लेफ्ट साइड से पीछे और राइट साइड से आगे। मन को ऐसे ही विश्राम करने दें, लेट द माइंड रिलैक्स विद द ब्रेथ। मन में विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट देम कम, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अवर माइंड। सांस लेते हुए गर्दन को सीधा करें, जितना हो सकता है उतना आंखें बंद करके करेंगे। हाथ शोल्डर्स पे रखेंगे, hands are on our shoulders. Can you see me? Because my own video is so small, I cannot see myself. तो वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ शायद इन, हाँ अभी मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। सो शोल्डर्स, हैंड्स ऑन द शोल्डर्स, ब्रीथ इन, ऊपर लेके आए, ब्रीथ आउट, नीचे लेके जाएंगे। अभी ये आंखें बंद करके करते हैं। As you breathe in, come up, and as you breathe out, go back and down. As you breathe in, come up, and as you breathe out, जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके। Breathe in, come up, breathe out, back and down. रिवर्स करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, we are not in any hurry. सांस को पूरी तरह से अंदर आने दे, एंड लेट गो, एंड रिलैक्स। कंधों को ढीला रखें। अभी सांस लेते वक्त कंधों को ऊपर लेके आए, और सांस जोर से छोड़े। ऐसे 20 बार करें। एंड रिलैक्स, विश्राम करते हैं। थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करते हैं, खड़े हैं ना अभी भी, थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करते हैं। लेट्स डू सम साइड स्ट्रेच। एक हाथ को ऊपर लेके जाए, दूसरे हाथ को नीचे लेके जाए, और बाईं हाथ की ओर देखें। जस्ट लुक एट योर लेफ्ट हैंड, इसी पोजीशन में बने रहे। जस्ट फील द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। शरीर में बाईं ओर जो खिंचाव है उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान लेके जाएंगे। Again our mind will want to go here and there, here and there. मन का स्वभाव ही है, वो कहीं पे रुकना नहीं चाहता है, फिर टिकना नहीं चाहता है। क्या हुआ, जाने दो, तो रोके नहीं। Don't hold your mind, let it go wherever it goes. Breathing, your attention
द स्ट्रेच्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का जो हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है उसकी ओर मन को लेके जाए और उसके अंदर से ही सांस को ले और सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए, अदर हैंड, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, पैरों में थोड़ा सा अंतर बढ़ाएंगे, increase the distance and bend sideways, जितना नीचे जा सकते towards your stretched hand, इसको बनाए रखें। Attention again to the stretched part of the body. Mind also now tendency wants to run away again, does not want to just let it. जाने हैं वहां पे जाने का उसको पूरा अनुमति दी, तो रोके नहीं। The mind do whatever it has to do. आप लेते रहे, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले लेंगे। अभी दोनों हाथों को ऊपर लेके आए, both hands up and stretch them up. Release your fingers और अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाए, stretch up and relax. फिर से नीचे और gently bend to the right. Keep breathing. As you breathe in, come back up, and as you breathe out, go to the left. Again, as you breathe in, come up. As you breathe out, go down and front. आगे की ओर नीचे, जितना हो सकता है उतना करें। खाना खाया तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Hands on the back, हाथ पीठ पे, and bend backwards. जितना पीछे बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करें। Breathing, breathe in, come up, and as you breathe out, relax. अभी आराम से बैठ जाएं। Down. अभी बैठे बैठे ही we are going to twist. हाँ, थोड़ा दाहिनी ओर से पीछे देखें, right side and look back. Can put your left palm on the knee, right knee. आपका बायां हाथ जो है वो दाहिने घुटने पे रखे। You can use your right hand, twist yourself. अपने पैर को, सोफा को या जमीन को जहां पे भी रखना चाहते हैं रख के अच्छी तरह से twist. And now do it from the other side. दूसरी ओर से फिर से कहीं करेंगे, अच्छी तरह से। And relax, विश्राम करें। While we are doing this, our mind is continuously going on its own. मन अपना ही इसमें जा रहा है, उसको जाने दे। We should smile at our own mind. जब भी कोई विचार आता है तो बस मुस्कुरा देना कि हाँ बस you are going wherever you have to go. तो अभी कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं। हाँ, we'll do some breathing techniques. उसके लिए आपको आंखें खोलनी है, थोड़ी देर के लिए आंखें खोलना। You can put your fingers like this on the face. अपने
चेहरे पे ऐसे उंगलियां रख सकते हैं। आंखों पे 2 उंगलियां, फर्स्ट फिंगर, नाक पे सेकंड फिंगर, अपर लिप पे थर्ड फिंगर एंड लोअर लिप पे फोर्थ फिंगर, और थंब से अपने कानों को बंद करना है और मुंह से आवाज निकालनी है। कैसी आवाज निकालनी है? एक बम्बल बी की तरह, ऐसे आवाज निकालनी है। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं ना। तो ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अभी करेंगे। तो आंखें बंद करें, लंबी सांस अंदर, फिर से एक बार सांस अंदर और एक बार करेंगे। इस बार जैसे हम कर रहे हैं वैसे अंगूठे को बीच में कानों को जेंटली प्रेस करेंगे। ब्रीद इन, और एक लंबी सांस अंदर, and relax. You can put your palms on your lap. अपनी गोदी में दोनों हाथों को रखें और आराम से बैठ जाए। Just sit down comfortably. अगर आपको बैक रेस्ट चाहिए तो बैक रेस्ट ले सकते हैं। You can take a nice back rest and sit. आज हम खुद को ही जानेंगे। Let us look at our own self. आजू बाजू में होने वाली आवाजों के प्रति सजग हो जाए। पंछियों की आवाज, पंखे की आवाज, गाड़ियों की आवाज, सारी आवाजों को हम स्वीकार करें। We are one with our environment right this moment.
एक लंबी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर छोड़े। Let us bring our attention to our body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। पैर, कमर, पेट, छाती, दोनों कंधे, गला, चेहरा, सिर की चोटी, ये पूरा शरीर, दिस होल बॉडी। अपने वजन को याद कीजिए। When we came to this planet, we were just 3-4 kilos. We were there in our mother's lab. अपनी माँ की गोदी में थे। 3 किलो वजन था। प्यार से हमें जाती थी, निश्चिंत थे। इस तरह से विश्राम करें। सारा वजन यहाँ पे बैठे हैं वहीं पे छोड़े। लंबी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए खाली करें। हमारी सांस निरंतर अंदर और बाहर जा रही है। ये ना होती तो ये जीवन ना होता। Let us feel grateful for our own breath. Let us bring our attention to our thoughts. शायद मन में कुछ विचार हो, रहने दें।
Let it be. इस समय हमें किसी भी चीज को ठीक नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो. At this moment, I don't want to change anything. Let me just be with myself. अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं. सुखद भावना है या असुखद भावना है, उसको रहने दें. ना रोके ना टोके. Just let it be. I is either happy or sad. Let it be. सांस अंदर और बाहर. मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अगर अच्छे विचार है तो हमारे बाईं ओर एक बास्केट है, उसमें डालें. अगर अच्छे नहीं है तो अपने दाहिनी ओर जो बास्केट है उसमें डालते जाए. जो भी विचार है वो उन बास्केट्स में डालते जाए.
I am not the object of senses. I am not the senses. I am peace, infinite peace, acts and repose in not the memories, nor impression, or event, but peace, infinite. लंबी सांस अंदर और बाहर। अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। Bring our attention to our thoughts, if there are any. Bring our attention to our body and to our surroundings. और परिसर के प्रति सजग होते होते whenever you feel complete, very slowly, gradually, and open your eyes. Morning. How was it? अभी कैसे है मन? विचार कुछ कम हो गए हैं क्या? मन कुछ शांत लग रहा है? So we have to invest time, है ना? किसी भी चीज के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो हमें हमारे लिए खुद के लिए कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम रोज मन को ऐसी थोड़ी सी आदत डालते हैं शांत बैठने की, अपने साथ बैठने की, तो इससे वो छूट पाएगा। नहीं तो फिर किसी ना किसी चीजों में वो उलझता रहेगा। मन की वो आदत ही है। और जब हम अकेले करते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन अगर हम साथ में करते हैं, कुछ लोगों के साथ करते हैं, तो साथ में करने में सबके एनर्जी के साथ वो बहुत अच्छा होता है। तो जरूर करना चाहिए। आप सब लोग कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर रेणुका है, वो शोलापुर से ही है, शायद आपके कॉलेज में उन्होंने प्रोग्राम्स भी लिए हैं पहले। हाँ, तो जरूर उनको बुला के आप प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। एंड वी शुड लर्न मोर। व्हाट डू यू से? देयर इज सो मच टू लर्न इन लाइफ, इजंट इट? खुद के प्रोफेशन के बारे में तो हम एक्सपर्ट्स है ही, बट कितनी बार हमने खुद की लाइफ की ओर थोड़ा सा गौर किया है? तो थोड़ा थोड़ा खुद के लाइफ की ओर गौर करना चाहिए। कई बार हमारी लाइफ क्या ड्राइव करती है हमें ही पता नहीं चलता है, बस चलते जाता है, ये चाहिए तो ये, वो चाहिए तो, ऐसे ही चलते रहता है। यस। तो look, meditation is simple for some people, but for some people it is very difficult. 5 मिनट बैठ के ये करना बड़ा मुश्किल होता है। कितने लोग हैं सिंसियरली टेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट
5 मिनट बैठना है तो भी मुश्किल है। यस, सोनी जी कह रहे हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट। देखो, फॉर ऑल ऑफ अस ना, आवर ऑर्डिनरी माइंड्स, आवर माइंड्स, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू मेडिटेट। मन को शांत रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम फिर म्यूजिक सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, क्योंकि मन ऐसे शांत खाली नहीं होता है। तो ऐसे चीज के लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक। आप जानना चाहते हैं? यस, कि जो मेडिटेट भी नहीं कर पाएगा उसको भी वो एकदम पूरा, यू विल बी लॉस्ट टोटली। तो इसमें शेयर कर सकते हैं हम वीडियो। कैन वी शेयर अ वीडियो हियर? यस सर। मुझे आप कैसे शेयर करना है बताना, तो मैं शेयर करता हूँ। सर, प्रेजेंट नाउ, यू क्लिक ऑन प्रेजेंट नाउ। ओके, सो आई विल शो यू वन वीडियो। या, हाँ, एंटायर स्क्रीन करते हैं, बराबर? आवाज Yes. आनी चाहिए ना, आवाज आनी चाहिए। एंटायर Okay. स्क्रीन। एंड डज इट से ओके शेयर? यस। अच्छा, आवाज आ रही है ना, बोलना मुझे। सर नो साउंड। आवाज नहीं है। So how do you get the sound on? Does it share sound also? Sir, share screen tab, not a, you can share the window or tab, then it can sound. Okay, so I'm sharing Stop a sharing. tab now. Stop sharing. Yeah, I've done You that. share Yeah, the now tab. tell me. Now you tell me. Now you tell me. Yeah. Is that just a second? We know that college-age students Yeah, have now a it's greater audible. prevalence of mental health issues than any other age group. We also know that 60% of students report that they have felt Sound is overwhelming low. anxiety, The and over volume 40% of raise kar students have sakte? reported feeling so depressed that they were unable to function. I seriously feel that a lot of students here don't have healthy The coping system mechanisms audio, to deal you with can stress, increase. and then we just kind of like shove it under the rug. The strategies that I used to manage the pressure points at Yale have varied. Usually I kind of don't manage them, but in general, like last semester, if I was overwhelmed by something, I would just kind of shut down. We see students come in with so much burnout and stress and a very distracted mind, and that makes academics hard and social life even harder. Instead of sitting down and doing what I needed to do, whether that be work or sports or going to the gym, I would find myself sort of moping around my room a little bit, becoming extremely distracted with social media. Stress in my life was like, I would kind of have meltdowns night before a race or a big test because I wouldn't know how to handle it that well. So that's why we launched this randomized controlled trial with around 200 Yale students. So what we did was have the students go through this 8-week intervention, and right before and right after those 8 weeks, we collected data on their psychological well-being, on measures of stress, anxiety, depression, burnout, life satisfaction, self-compassion, all of the different facets of well-being. We decided to evaluate 3 different empirically validated well-being interventions side by side compared to a control group. An emotional intelligence program, did mindfulness-based stress reduction, and finally we selected the SKY Campus Happiness Program. So SKY, the Campus Happiness Program, is a comprehensive wellness program that addresses wellness and happiness from many angles, incorporating breath work, yoga, and deep meditation, as well as leadership and service learning, and also positive psychology. The core of the SKY Happiness Program is SKY Meditation. Quite honestly, I was
pretty skeptical going into it. I've never really done breathing exercises. I didn't know that was a thing that you did with meditation. I just assumed meditation was kind of like sitting in a dark room and like trying not to think about anything. I never really bought into meditation or yoga as a way to improve my well-being. And then my thoughts about meditation and mindfulness started to change a little bit until we actually got to the Sky Meditation retreat. I cannot believe, still to this day, how deep of a meditation I fell into. But I didn't know how much of it was like your physiology, like how you control like the things inside of you, like with breathing, which I had no idea that you could even do that. Sky meditation immediately starts releasing stress from the nervous system and has a deep physiological effect. I felt alive, I felt energized, I felt awake. I remember waking up after that Sky meditation session. I cannot remember a day I was more productive. Well, when I do the practice, I feel rejuvenated. My head is clear. I know what I have to do that day, and then it feels really good, like I'm full of energy. Being equipped with the knowledge that I've Yes. So you can hear me now? So this Sky meditation is Sudarshan Kriya Yoga. What we hear about, what Art of Living has been teaching for the past 40 years in nearly 156 countries. It has been scientifically validated so many ways that just breathing, rhythmical breathing, can correct so much, make so many changes in our mind, in our hormonal systems. And I find a lot of people have finding good health, good mental peace after doing Sudarshan Kriya Yoga, which is taught in the Art of Living basic programs. Sometimes we feel, yeah, what is there? No, it's just breathing. What more? We already know all pranayamas, Brahmari pranayam, because we are all intellectual people. We use a lot of logic behind everything. We know pranayams are there, Kapalbhati is there, we know yoga, we know meditation. So we think that it must be something like that only. But I'll tell you, this Sky meditation is really out of the world. We cannot compare it with our usual known ways of relaxing, because it really takes us without us knowing. If something has to happen, it has to happen without our knowledge only. So we do something and then something else only happens. हम कुछ कर रहे हैं और वो करने से अंदर ऐसे कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या होता है वो पता नहीं चलता है. So that is the beauty of it. Whether you are a person who likes to sit quiet, whether you don't like to sit quiet, whether you are a person who goes in for meditation, does not like meditation, doesn't matter. Everybody, each and every individual finds so much of peace and relaxation, which they have experienced so many years back. Like my experience after doing this was, I felt like when I was very young, my mind used to be very clear. So as we grow up, आपल्या मनामध्ये काही ना काहीतरी आहे ना, things start growing, one thought, other thought, and our mind is full bunch of thoughts. So after a lot of years, I felt, oh, my mind is so clear, nothing is there. So we all should take up this thing of learning Sudarshan Kriya. Okay? That is one thing we should definitely do while we are all here on this planet, and especially in this COVID times, it has been a boon actually. We have had a lot of our teachers, volunteers who have really, this Sudarshan Kriya has really helped them take through COVID times very effortlessly. Just like I said, that any illness that can affect our body, the impact of that illness is decided by how our state of mind is. If our state of mind is perfect, it is relaxed, then that illness does not want to trouble you so much. And Renuka Didi, you want to share your experience? Because I know when you had it also. Dr. Renuka, she'll share her experience of COVID. Yes. Last जुलाई में मुझे भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ. 14th जुलाई I remember.
तो उस दिन इतना हाई ग्रेड फीवर था और मैं उससे, वो फर्स्ट वेव था, पेशेंट देखती थी। सब हम यहाँ पे रूरल एरिया पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कितना भी प्रिकॉशन ले ले, लेकिन यहाँ रूरल एरिया के पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, तो फिर वो उनको नजदीक जाके चेक करना पड़ता था, विदाउट मास्क वो आते थे। मुझे आपको अनम्यूट रखना, अनम्यूट रखना, म्यूट कर सकते हो रश्मि आप? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರು ಬಾ. ओके, हाँ रेणुका दीदी तुम्ही सांगा आता. ओके, सुनाई दे रहा है? Mute yourself. Rashmi madam, please mute yourself. हाँ हाँ ओके, सुनाई देता है? या यस, हाँ. तो फिर मुझे, मैं जो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रही हूँ, इसका इतना फायदा होगा ये मुझे पता भी नहीं था. कितने सालों से, नियर अबाउट 2004 से मैं सुदर्शन क्रिया सीखी, तब से मैं ये रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ, प्राणायाम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया. तो इसका इसमें पैंडेमिक में मुझे बहुत फायदा हुआ कि मुझे सिर्फ 1.5 डे फीवर आया, टेस्ट वाज पॉजिटिव, बट बाकी कुछ सिम्टम्स नहीं, और मुझे कहाँ पर भी जाना नहीं पड़ा. 2 दिन सिर्फ पैरासिटामोल टैबलेट लिया मैंने, और देखते जाएंगे आगे, ऐसा मैं सोची थी. कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए, और जो भी आयुर्वेदिक हम बोलते हैं सब लोगों को कि स्टीम लेना है, गार्गल्स करना है, कवल गंडुश, यही करती थी. फिर 2 दिन के बाद मैं टोटली नॉर्मल थी, सिर्फ थोड़ा दिन वीकनेस था. तो बाकी उसी समय मेरे जो भी कलीग्स थे, डॉक्टर्स हो यहाँ पर प्रैक्टिसिंग, एक हॉस्पिटलाइज हो रहे थे. लेकिन उस दौरान मैं अपने आप को घर में ही आइसोलेशन में रखते हुए 1-1.5-2 दिन में मैं अगर क्योर हो सकी, तो इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय मैं अपने ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस से देती हूँ. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मेरे साथ यही अनुभव है. तो मुझे तो ये लगता है कि ये बोन है आज के कोविड इस पैंडेमिक में. सबको ये सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है, ओके. क्योंकि इससे इतनी लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ती है, अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते. जब ऐसे कुछ चपेट में आते हैं, चोट में आते हैं, तो वो कैसे सेव करता है, ये मुझे तो पूरा इसका अनुभव आ गया है. तो इस अनुभव के साथ मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे, कर रहे हैं, तो उनको इसका असर बहुत कम होने वाला है. ओके, परफेक्ट. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. हाँ, ये सुदर्शन क्रिया सीखना, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. उसके अलावा वी आल्सो कंडक्ट सम फ्री वर्कशॉप एंड सेशंस फॉर एवरीबॉडी. हाँ, बीच में, सो यू कैन स्टे इन टच with your faculty. We'll keep communicating to you whenever you want, and if you want to conduct any workshop for your college, for your faculty, you can let us know. That is another thing. If you have any questions, आपको अगर कुछ health related questions है, सवाल है, तो you're most welcome to ask the questions now. आप chat box में डाल दे. तब तक हम और एक वीडियो देखते हैं. शोलापुर के ही डॉक्टर है, डॉक्टर निजामुद्दीन कोतवाल. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, couple of minutes. तो we'll listen to that. तब तक आप आपके क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स में डालना. जो भी आपकी क्वेश्चंस है, आप वो डाल सकते हो. ये आवाज आ what you do and share experience. Yes. हिंदी में बोलता हूँ मैं. माय नेम इज डॉक्टर निजामुद्दीन कोतवाल. आई एम अगेन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं एमडी मेडिसिन हूँ, इंटेंसिव केयर हूँ. मैं फिलहाल आईसीयू कंसल्टेंट हूँ.
कोविड की सिचुएशन में काम कर रहा हूँ, खुद कोविड से गुजर चुका हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मुझे मेरे कलीग हैं डॉक्टर विजय पवार, जो खुद इस सिचुएशन से जा चुके थे, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के बारे में बताया था। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो कोविड का बीमारी चल रहा है वो पूरी तरह लंग्स से रिलेटेड है, ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉर्मल सैचुरेशन जो रहता है बॉडी का या नॉर्मल लोगों का, वो 95 के ऊपर रहता है, बट कोविड में सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका सैचुरेशन फॉल होने लगता है, आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपका सैचुरेशन 80, 84 जाने लगता है। ये सिर्फ पैरामीटर नहीं रहता है, जब आपका सैचुरेशन 90 के नीचे जाता है तो आप ब्लैकआउट हो जाते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, यू सी अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, आपको विजुअल हैलुसिनेशन होने लगते हैं, मतलब ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो आपके सामने नहीं होती है पर आपका माइंड विजुअलाइज करता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको वेंटिलेटर, बाईपैप, HFNO वो सब लगता है, ठीक है। इतनी डिफिकल्ट ब्रीदिंग सिचुएशन होती है, पर उससे रिकवर होने के बाद अभी मैंने जब ये कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक शायद लंग की पूरी कैपेसिटी कभी यूज ही नहीं कर पाई, पूरी तरह लंग को इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमने कभी अपने लंग्स को यूज ही नहीं किया। सुदर्शन क्रिया, ऑल 3 प्राणायाम, इससे मैं डॉक्टर हूं, मैं फील कर सकता हूं कि मेरा एपेक्स, मेरे लंग्स कहाँ तक हवा जा रही है, ठीक है। मेरे लिए आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई नहीं है। आप फील कर सकते हैं कि आपका लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट इन्फ्लेट हो रहा है, एक्सेल हो रहा है। आप जैसे बलून इन्फ्लेट करते हो और बलून एक्सेल करते हो, यू कैन फील इट फॉर योरसेल्फ एंड इट इज सो डिफिकल्ट, मतलब सो इम्पोर्टेंट सिचुएशन। आपको जीने के लिए क्या लगता है? पानी, जैसे सबसे पहले बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्रेथ, जो गॉड ने आपको फ्रीली दी है, फ्रीली, और अपन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रीदिंग टेक्निक और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम से सबसे पहले एंजाइटी तो दूर हो गई, काफी स्ट्रेस था वो दूर हो गया। ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से आपको पता नहीं, मैं आई वाज यूजिंग स्पायरोमीटर, मैंने पहले बताया था मॉर्निंग सेशन में भी, स्पायरोमीटर यूज कर रहा था मैं कि ताकि मेरे लंग्स इन्फ्लेट हो, क्योंकि 70% लंग इन्वॉल्वमेंट है, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। अभी उस एक्सरसाइज को, फिजियोथेरेपी, CARP हमारा रहता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव मुझे ये सुदर्शन क्रिया लगी, जिससे मैं बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, आई एम डूइंग ऑन माय ओन, ठीक है। मैं अपने आप पूरी सांस भर सक रहा हूँ, पूरी सांस ले सक रहा हूँ। 2 वीक्स के बाद मेरा फॉलोअप ड्यू है, उसके बाद मेरा रिपीट CT स्कैन होना है 9 जुलाई को। उसमें मैं देखूंगा, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लंग्स जो 70% थे, आई होप कि वो नियर नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूँ आफ्टर दिस। एंड आई एम श्योर, मैं मतलब 100%, मैं तो रोज ये 40-50 मिनट मॉर्निंग आवर्स में, आई एम अर्ली राइजर, 6 बजे उठता हूँ मैं मॉर्निंग में भी करूंगा, मैं इवनिंग में भी करूंगा, क्योंकि मुझे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेरे कलीग्स ने, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है क्या ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ा है मुझे करने के लिए बोला गया है अगले कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी के लिए, तब जब तक मेरे लंग्स पूरी तरह खुलते नहीं है, पूरी तरह हील नहीं होते, बट बहुत बहुत इफेक्टिव है। आई रियली लाइक्ड इट। और मेरे जितने कलीग्स है, मेरे मेजॉरिटी फ्रेंड्स जो है वो सब डॉक्टर्स है, नॉन डॉक्टर्स मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं 15 साल से इस मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। मैंने सबको पिछले 2 दिनों में आर्ट ऑफ लिविंग का ये कोर्स, मैंने सबको लिंक फॉरवर्ड किया है। काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अफेक्ट हुए वो इंटरेस्टेड है, जो अफेक्ट नहीं हुए वो भी इंटरेस्टेड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अफेक्ट नहीं हुए, गॉड फॉरबिड उनको कुछ ना हो, बट अगर आप ये चीज कर लोगे, जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत पढ़ा है लिटरेचर इसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, अगर आपका ब्रीदिंग सही हो, अगर आप अपनी लंग की फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हो, तो बहुत अनलाइकली है कि आपको कोई बीमारी होगी, निमोनिया, लंग्स रिलेटेड बीमारी कुछ। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स, मैं लेट मी क्लियर, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ब्रीथिंग। आप जो फर्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन रहता है बॉडी का, या कुछ भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ये वो सब लंग्स से आता है। अगर आपके लंग्स क्लियर है, लंग्स आर फिल्टर, आपका ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये फिल्टर है। ये अगर क्लीन रहेगा, ये अगर हेल्दी रहेगा, आई एम श्योर यू विल बी अ हेल्दी पर्सन। Thank you. Very nice. Very nice. Thank you very much. Yes. Very nice experience, ना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका खुद का एक्सपीरियंस है, तो हमें सबको करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या, हेल्थ रिलेटेड, हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, एनीथिंग यू वांट टू नो?
अच्छा, ये एक चीज मैं बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी ना, इसमें पाया है कि जिनको भी कोविड हुआ था उनमें से जो लोग एक्सरसाइज करते थे, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते थे, उनको कोविड बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है, वो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर आल्सो वेरी यूजफुल। तो अगर कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो वो भी यूजफुल है। बाकी सारे विटामिन सप्लीमेंट्स है, उसका इतना कोई रोल नहीं है, ऐसे सपोर्टिव करके देते हैं। जो लोग जल नीति करना जानते हैं, कहते हैं कि जल नीति का भी थोड़ा बहुत असर है, कि सुबह शाम अगर जल नीति करते हैं ना, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं सीखने की जरूरत। आपको वो जल नीति पार्ट किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, और आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे ना जल नीति का, तो आप इजीली सीख पाएंगे। तो ये 3 चीजें करने से कोविड अगर होगा तो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, जब तक वैक्सीन ना मिले। वैक्सीन मिल गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। ओवर टू यू डॉक्टर रजनीगंधा जी, आप कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुदर्शन क्रिया किया होगा, सीखा होगा। अभी जिनको सीखना है या रिपीट करना है तो अपना 13 मई से 16 मई थर्सडे से संडे अपना ये ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप है जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। उसका लिंक यहाँ पे शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्वेरीज है तो आपके यहाँ वीरेश दामा दिख रहे हैं, विजय कुमार शिरवार है, या और जो भी है उनसे आप ये लिंक लेकर ये कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन, हाँ करेक्ट। तो 2-3 क्वेश्चंस है उसमें। एक क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक कोविड के बाद ज्यादा होता है क्या? कोविड ना बहुत ही अनयूजुअल बीमारी है, यूजुअल फ्लू के तरह नहीं है। अभी भी इट इज नॉट वेरी श्योर कि वो रियली नेचुरल वायरस है कि नहीं है। कई लोग ऐसे व्हाट्सएप में कहते रहते हैं कि वो बायो वारफेयर का ही पार्ट है, क्योंकि कभी हमने ऐसे देखा ही नहीं है कि इस तरह का वायरस जो है, जो इतना बदलते रहता है, उसमें म्यूटेशंस आते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी एस्केप करके वापस दूसरी तरह से आके करता है। तो लास्ट ईयर का कोविड का जो प्रेजेंटेशन था और इस साल का बहुत अलग अलग है। तो दिस इज सम इलनेस इट इज बेटर टू अवॉइड। अगर वैक्सीनेट होकर अवॉइड कर सकते तो अच्छा ही है। हो जाता है इफ यू आर लकी ना, 90% ऑफ द टाइम्स कुछ नहीं होगा, 10% ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम हो सकता है। और जो मॉर्टेलिटी या डेथ का चांस है वो 2% है, अराउंड 2.5% है, कई जगह पे कम है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, पता नहीं इतना क्यों महाराष्ट्र पसंद आ गया है कोरोना को, अभी भी मुझे पता नहीं चला है। क्योंकि मेरे केरला के दोस्त थे, वो उनको मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि वहाँ पे कोविड होता है लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं लगता है, बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल लगता है या कुछ होता है। तो आई डोंट नो, कुछ जेनेटिक भी है। हमारे ऐसे कुछ है कि जिसमें फैमिलीज कोविड की वजह से चले गए, मतलब फादर बेटे ऐसे सब दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से, बट कोविड में हार्ट अटैक्स और ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी काफी ज्यादा रहती है। तो जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें से कुछ टेस्ट अगर एबनॉर्मल आते हैं जिसमें क्लॉटिंग ज्यादा लगे, तो उसमें हम एस्पिरिन का गोली जरूर देते हैं। हाँ, 3 महीने के लिए एस्पिरिन का गोली देते हैं, सो दैट वो हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन मिले, थोड़ा प्रोटेक्शन मिले ही से, थोड़ा तो मिले। लंग्स में भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी है कोविड के बाद, सो इट इज नॉट अ ग्रेट इलनेस टू हैव। अगर किसी को हुआ है कोविड तो सबसे ज्यादा क्लॉटिंग कम करने के लिए अच्छा होता है कि बहुत हाइड्रेशन रखना, पानी जितना पीते हैं ना तो खून पतला रहेगा। दैट इज वन थिंग वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए एक तो 3-4 चीजों की बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अच्छा नींद लेना, सोना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज करना। तीसरा, डाइट पे ध्यान देना। चौथा जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। और डाइट में क्या है कि सिंपल डाइट रखो, जितना हो सकता है वेजिटेरियन डाइट रखो, पानी बहुत पियो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना फॉलो करेंगे तो काफी है। कोविड के लिए वैक्सीनेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। कोविड का वैक्सीन जो है वो एक डोज के बाद अराउंड 30% प्रोटेक्शन देता है,
2 डोसेस के बाद 60 to 70% प्रोटेक्शन देता है, जो यूजुअल हमारे वैक्सीन है वो। After 2 doses, the chance of us dying because of COVID is negligible, 0.03% ऐसे कुछ है। तो vaccine is the solution to make this the viral illness at least in the present form। कल वो बदल के आएगा तो नहीं बोल सकते, अलग फिर से वैक्सीन निकालना पड़ेगा। बट आई थिंक सारे जो एजेंसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, वो भी अभी स्मार्ट हो गई। नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जल्दी वो वैक्सीन को रेगुलेटरी इसमें से जल्दी निकालेंगे, क्योंकि यही शायद थोड़ा जल्दी निकालते इसमें से, क्योंकि ये भी है ना, वैक्सीन का भी डर है। लोग कहते हैं वैक्सीन से भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, वैक्सीन से भी प्रॉब्लम होते हैं, और वो है भी। ऐसे नहीं कि कोई चीज 100% सेफ है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस से एडवांटेजेस तो कई गुना ज्यादा है। वो प्रोटेक्ट भी करता है, so there is no doubt about it। सो वैक्सीन के बारे में था। फिर और कुछ सवाल थे? बैक डेली रूटीन कैसे रखते हैं लॉकडाउन पीरियड में? डेली रूटीन कैसे रखते हैं? डेली रूटीन आप बताएंगे रेणुका दीदी, आयुर्वेदा के हिसाब से जो भी डेली रूटीन रखना चाहिए वो। यस, आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्या जो बोला गया है ना, वो इस टाइम में तो बेस्ट है, क्योंकि पहले के लोग यही फॉलो करते थे तो स्ट्रांग रहते थे। अभी फिर यही दिन आए कि हम उसको फॉलो करें। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, हाँ, ये लवकर निजे लवकर उठे हे जे ही जी म्हण आहे त्याच्यानुसार आपल्याला उठायला पाहिजे। एक्सरसाइज सरांनी सगळं कव्हर केलेलंच आहे, सब कुछ कवर किया है। एक्सरसाइज करना है, सुबह का समय हम शुचिर्भूत होकर एक हाफ एन आवर तो अपने लिए निकालना है। कुछ भी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जो भी आपको आते हैं, पता है, वो करना है। फिर जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी रखना है। और इस कोविड इसमें तो हम बोलते हैं गंडुश, सब एक्चुअली ये दिनचर्या का ही भाग था। गंडुश बोलते हैं तो गुळण्या जे म्हणतो आपण, मीठ आणि हळद घालून कोमट पाण्याने गुळण्या करणं सकाळी उठल्यानंतर, ब्रशिंग नंतर आणि झोपताना, हे 2 वेळेस केल्याने खूप फरक पडतो। आणि ह्याच्यामध्ये आपण जरी ग्रीष्म ऋतू आहे तरी सुद्धा स्टील ऑल्सो आपण कोमट पाणी पिलेलं जास्त बेटर राहील। कोमट पाणीची सवय नाहीये किंवा शक्य नाहीये तर ऍटलीस्ट नॉर्मल पाणी, थंड पाणी, फ्रीज मधलं पाणी पूर्णपणे अवॉइड करावं। त्यानंतर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हे वेळेवर, संध्याकाळचं जेवण हे उशिरा नको, 7-7:30 वाजेपर्यंत आपलं जेवण व्हायला पाहिजे। आणि वर्किंग आवर्स नुसार तुम्ही तुमचे सगळं शेड्यूल बनवू शकता, लेकिन रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 7 आवर्स रेस्ट एटलीस्ट हम सबको लेना है। और हमारा मनोबल जो है ना, बहुत पॉजिटिव अच्छा रखेंगे। कितना भी बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमारा मनोबल हम स्ट्रांग रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। जितना हम स्ट्रेस्ड रहेंगे उतना हमारा इम्यूनिटी कम होता है ना। स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना स्ट्रेस लेवल कम है उतनी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। तो थोड़ा अवरेज जो है, हम बोलते हैं उसको प्रतिमर्श नस्य। गाय का अगर घी मिलता है तो मॉर्निंग हम स्नान करने के बाद उसको जेंटली अपने लिटिल फिंगर को थोड़ा सा लगाकर हम अपने नोस्ट्रिल के टिप पे अंदर के साइड में हम उसको लगाते हैं, तो वो नस्य बोलते हैं हम उसको, प्रतिमर्श नस्य। ये सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या ये वहां पर मैक्सिमम स्टक हो जाते हैं। ये हमारा दिनचर्या का एक भाग कायम में भी हमेशा भी रहना चाहिए। बाकी फूड के बारे में, सबके बारे में सर ने कवर किया ही है। आप सर म्यूट हो। फिजिकल एक्सरसाइज कैन बी कंपेयर्ड विथ मेडिटेशन विच इज मोर इफेक्टिव। दोनों अलग है डॉक्टर उगले, दोनों जरूरी है और दोनों अलग है, और एक दूसरे को ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है और मेडिटेशन भी जरूरी है। हालांकि मेडिटेशन हम कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब बैठ के करना, वो मेडिटेशन है,
Actually, meditation is something where the mind is in a flow, है ना. जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, एंड यू स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट मोमेंट, कि अपने आप वो लेक्चर होने लगता है, दैट फ्लो इटसेल्फ इज मेडिटेशन. और वो होने के लिए तन्मयता की जरूरत है, एक तरह से आने में, मन को उसमें आने में बहुत जरूरत होती है. आवर एंटायर लाइफ कैन बी अ मेडिटेशन, बट फॉर दैट वी हैव टू टेक टाइम ऑफ. थोड़ा थोड़ा टाइम अगर बचा के करते हैं ना, तो फिर वो एक ट्रिक आ जाता है जिससे हम बैठ के भी कर सकते हैं. और दोनों चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए और मेडिटेशन भी चाहिए. सो यू शुड लर्न मेडिटेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ. जैसे आप ये प्रोग्राम में लेते हैं, सिर्फ सुदर्शन क्रिया योगा मेडिटेशन नहीं लेते हैं, उसके साथ लिटिल बिट ऑफ स्मॉल टिप्स कि हम हमारे माइंड को कैसे, ऐसे जैसे सपोज एक अपना सिल्क का क्लॉथ है, वो हम लेके जा रहे हैं और कहीं पे कांटे में फंस गया, हम उसको खींचने के लिए जाएगा तो फट जाएगा, तो उसको बहुत स्किलफुली बाहर निकालना पड़ेगा. वैसे ही अपना मन है, वो मन इधर उधर की दुनिया में फंस जाता है, उसको स्किलफुली निकालना जो है, उसके लिए छोटे छोटे नॉलेज पॉइंट्स होते हैं, वो काफी यूजफुल है. तो हम वो भी सीखते हैं जिससे हम उसको अच्छी तरह से उठा सकते हैं. नहीं तो फिर जिंदगी ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है ना. तो वो बहुत जरूरी है. क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, ये तो सब आपको मिल जाएगा. मेडिटेशन करना है, इसके भी काफी सारे आपको पीएचडी भी मिल जाएंगे कि क्या करना है, लेकिन एक्चुअल मेडिटेशन होना बहुत अलग बात है. वो सुदर्शन क्रिया करने से अपने आप हो जाता है. एंड अदर देन दैट, हमें हमारे लाइफ को सुधारने के लिए छोटे क्लूज चाहिए, वो भी हमें इसी कोर्स के दौरान सीखने को मिलते हैं. एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न, बहुत है सीखने को, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न. जिसको इंटरेस्ट है ना, इट इज लाइक an unending thing. What helps is that it gives us a direction for life, what life is. हमारा लाइफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत बदलता है. जैसे मैं पहले समझता था, और अब आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर बीइंग इन आर्ट ऑफ लिविंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दैट आई कैन टेल यू. फिर ट्रेडमिल अच्छा है क्या? ट्रेडमिल अच्छा है लॉन्ग रन. एनी एक्सरसाइज इज गुड. एरोबिक एक्सरसाइजेस आर गुड, whether you do treadmill, whether you do running, whether you go out on a walk on a hill, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पॉसिबल है, वो करना चाहिए. हर एक का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है ना. घूमने के लिए गए, किसी टू व्हीलर वाले ने धड़क मारा तो उसका नुकसान भी है. तो थोड़ा फायदा और नुकसान हर एक चीज का होता है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है. कार्डियो एक्सरसाइज जो कहते हैं वो. अगर कोविड हो चुका है और दूसरा डोज लेना है, फर्स्ट डोज लिया है, दूसरा डोज लेना है, तो 3 महीने तक ले सकते हैं. तो कोविड होने के बाद 6 हफ्ता तो रुकना है, 6 हफ्ते के बाद दूसरा डोज ले. और बैक पेन स्ट्रेस की वजह से है एक्चुअली ना. ये जो हमारे सारे बॉडी एक्स है, 2-3 वजह से होते हैं. एक तो हम स्ट्रेस की वजह से अपना पोस्चर करेक्ट नहीं रखते. कई बार हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उसकी वजह से ये नेक, शोल्डर्स, ये सारी जो चीजें अफेक्ट होती है. दूसरा, हम जो कहते हैं ना कि सारा जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है वो हमारे कंधों पे बोझ बन जाता है ना, उसकी वजह से भी यहाँ पे स्टिफनेस आता है. तीसरा, जो लो बैक पेन्स, बॉडीली पेन, सारे शरीर में जब दर्द होने लगता है तो वो वाता इम्बैलेंस होता है. ये अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं. हाँ, तो स्ट्रेस से वाता इम्बैलेंस भी हो सकता है, स्ट्रेस से हमारा पोस्चर भी इनकरेक्ट हो सकता है. तो ये सारी चीजें करेक्ट करने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह से योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, सुदर्शन क्रिया करो, एंड आवर बॉडी, आवर हेल्थ विल ऑटोमेटिकली करेक्ट. उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी. It's already beyond 3:30. I think there'll be more sessions also coming up. They have a busy day today. So it is really our pleasure to be here. Both Dr. Renuka, Viresh ji, me, and Vishakha ji, who were supposed to be here. So हम लोगों का ये, it is our privilege that we could share what we have with us, and we are here only for that. Yes, sir. Thank you very much, sir. चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, जिनको भी सुदर्शन क्रिया सीखना है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं. मेरे ख्याल से रजनीगंधा जी है ना, रजनीगंधा जी है. Yes, sir.
आपका नंबर अगर बताएंगे तो वी कैन गेट इन टच विथ यू. डॉक्टर रेणुका विल कॉल यू. Yes. Okay, sir. आप नंबर आपका चैट बॉक्स में डालेंगे. Yes, sir. I'll post my number in the chat box. Yes. हाँ, so डॉक्टर रेणुका विल गेट इन टच विथ यू. हम में से जो भी जिन लोगों ने भी अटेंड किया है, वो आई वुड रियली वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन दिस प्रोग्राम. वंडरफुल प्रोग्राम. इट इज स्टार्टिंग दिस थर्सडे, either 2 hours in the morning or 2 hours in the evening. either सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, उतना टाइम हमें हमारे लिए निकालना है ना? And we'll do Yes, this sir, sure. wonderful program. आप रजनीगंधा जी से कांटेक्ट कर लेना और she'll share the details with you. We'll share it with her. Okay, sir. Thank you, sir, for such an amazing session. Your stretching and exercises were really relaxing, and also the breathing technique that you taught and the pranayama meditation part made us feel refreshed and calm down. I'm sure everyone is going to invest time in practicing from today onwards. Thank you, Dr. Dhupeshwarkar and Dr. Shirgond ma'am. So this is for today. I'm also thankful to all the participants for their active participation. On behalf of A.G. Patil Institute of Technology, I declare that today's sessions are over. Tomorrow we are going to meet again at 10 a.m. Till then, take care and thank you.